Hello guys, how are you all? कैसे हो सब बढ़िया? So before starting this course, let me introduce myself. My name is Indrajit So and I'm a system engineer in an organization. So why I have studied this course? Only because I love programming and I love to share my knowledge and I love to gain knowledge from others also. So without wasting the time, we just start the course. So the course is about C++. So, what is C++? So, before starting any programming language, you have to know what is programming language and why we use the programming language. What is the advantage of the programming language? So that you can move further. So we'll discuss all the things regarding this is the introduction part. So I'll show you how the C++'s work is, what is the concept behind the programming language, how the programming language work, how a software is made. Okay, so we'll clear all the doubts and concept here. So let's start. So what is C++? So C++ is a programming language which was developed by a computer scientist named Brian Stotostrom. So he was the developer who introduced the C++. Okay. So as I said that C++ is a programming language. So what is a programming language? Why do we need programming language? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं आपके साथ बात करता हूँ हिंदी में या इंग्लिश में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए। उसी तरह कंप्यूटर के साथ भी कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग को एक लैंग्वेज चाहिए जिसका नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पीएचपी, असेंबली लैंग्वेज एंड लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर देयर। सो द नेक्स्ट इज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये दोनों क्या है? So compiler and interpreter are the most crucial part of a programming language. There are some programming language like who use compiler and there are some programming language who use interpreter. Like the scripting language like Python हो गया, PHP हो गया, they use interpreter. And like C++ हो गया, Java हो गया, Java भी interpreter use करता है. Sorry, Java भी programming language compiler use करता है. Okay, so what is the concept of compiler and interpreter? So first of all, compiler, sorry. So compiler is a program which is used to compile or convert to translate the human written source code into machine language, that is 0 and 1. इसका मतलब है जैसे अभी मान लो कि आपको you are from south, yeah, like you know only South Indian language like Tamil language, but I don't know. I know only Hindi language. So if I want to communicate with you, so how I will make you understand? The only way is the only way or only option is I can use a translator. I can use a translator. I can use a person with the help who know here Hindi as well as Tamil also. So I will say the things to him like मुझे पूछना है suppose आपका नाम क्या है? तो then I will say to him and he will translate the sentence into Tamil language. Then he will tell to you. Then this person is asking about your name. Okay, so the same process is going on in the computer also. कंप्यूटर को सिर्फ जीरो एंड वन पता है, उसको सिर्फ जीरो एंड वन ही समझ में आता है, which is called binary language, sorry, binary code, जीरो एंड वन. तो अभी तो हम लोग इतने सारा जीरो एंड वन तो हम लोग लिख नहीं सकते. इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू राइट द कोड. ओके, तो क्या किया साइंटिस्ट ने, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया लाइक असेंबली लैंग्वेज हो गया आपका, प्रोग्रामिंग लाइक सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया. सो with the help of these programming languages we can communicate with the computer. The compiler compiles the programming language to machine language, that is 0 and 1. ओके, उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर को समझ में आता है कि हम लोग क्या बोलना चाहते हैं और व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन वी आर सेंडिंग टू हिम. ओके, so the next one is interpreter. So interpreter is also a program which is used to run or execute each and every instruction step by step during the run time of the program. जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम रन करते हैं, रन करने के समय जो स्टेप बाय स्टेप जो मतलब
लाइन हम लोग जो लिखते हैं वो जो एग्जीक्यूट होता है उसका उसका काम करता है इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोसेस. तो सपोज हम लोग जैसे गेम खेलते हैं या कुछ दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जो हम लोग वो कर मतलब जो यू द सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, वो वही सब उसका काम, उस प्रोसेस का काम कर रहा है इंटरप्रेटर जो है. सो वो क्या करता है, एक वन स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, प्रोग्राम सॉरी जो इंस्ट्रक्शंस है वो रन करता है. विल गेट टू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिकल सेशन. जब हम लोग अभी प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या है चीज़. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. So the next topic is how a C++ program works. So there are three steps. तीन steps है. The source code, the compile, object code. Sorry, four steps है यहाँ पे. The exe file. ये चारों. इसके अंदर तो और सारे भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को समझ में नहीं आएगा, मतलब उसके ऊपर पढ़ाई करना पड़ेगा. बट ये जस्ट सिंपली अभी पढ़ना है कि सोर्स कोड, कंपाइल, ऑब्जेक्ट कोड और ये क्या है. तो पहले क्या होता है सोर्स कोड में, हम लोग पहला स्टेप है हम लोग लिखते हैं सोर्स कोड में. सोर्स कोड में जो हम लोग कोड लिखते हैं उसको कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है हम लोगों के मशीन लैंग्वेज में. तो मशीन लैंग्वेज जब कन्वर्ट होता है तब ऑब्जेक्ट कोड एक क्रिएट होता है सी प्लस प्लस में. वही ऑब्जेक्ट कोड जो है वो है मशीन लैंग्वेज. तो मशीन लैंग्वेज जब कन्वर्ट हो गया उसके बाद क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड से बनता है EXE फाइल, जो फाइनल फाइल है. इसी फाइल को हम लोग यूज़ करते हैं. ये फाइल आप खुद एक प्रोग्राम बना के दूसरे कोई दोस्त को दे सकते हो, वो अपने पीसी पे जाके ये फाइल रन कर सकता है जो EXE फाइल है. एंड रिमेंबर वन थिंग दैट EXE फाइल जो है ये विंडोज़ का प्रोडक्ट है, तो विंडोज़ में ही चलेगा. लिनक्स में भी चल सकता है बाय यूजिंग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लाइक विन, आई डोंट नो, इट्स आई फॉरगॉट द नेम. तो उस सॉफ्टवेयर के जरिए, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर you can run the exe file. Okay, so the next is topic is object code. So object code is the machine code converted by the compiler. Okay, and the exe file is the executable file which is run by Microsoft Windows. So next topic is error, compile time error and run time error. तो यहाँ पे हम लोग सिंपली पर अभी आपको बता देता हूँ कि क्या है, ये प्रैक्टिकल करेंगे. So the compile time error is this error is generated by compiler during the time of compilation. जब हम लोग convert करेंगे लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में तब ये कंपाइलर जो एरर निकलेगा उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि हम लोग कंपाइलेशन के टाइम पे वो एरर आ रहा है. The next one is runtime error. This error is generated by interpreter during the runtime of the executable file. जो executable file, जो फाइनल फाइल जब रन होगा, सपोज मैंने आपको आपको दे दिया वो फाइल या आपके दोस्त ने जो लिया है वो फाइल, उस फाइल जब फाइनल फाइल को जब हम लोग क्लिक करेंगे जब रन होगा उसको बोलते हैं रन टाइम एरर. जब कुछ एरर देता है, सपोज आप मान लो आप कुछ गेम खेल रहे हो या कुछ सॉफ्टवेयर चला रहे हो, सपोज वो सॉफ्टवेयर जब चला रहे थे उसमें बीच में से एक मतलब एरर दे रहा है कि सपोज आप गेम खेल रहे हो, बोल रहा है डायरेक्ट एक्स नॉट फाउंड या सम DLL फाइल नॉट फाउंड. तो उसका काम है कि वो जो है रन टाइम में जो एरर आ रहा है उसको बोलते हैं रन टाइम एरर. तो हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे अभी, उसके बाद आपको सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. द नेक्स्ट इज एडवांटेज, ये बाद में करते हैं, पहले एक काम करते हैं इसको करते हैं. सो दैट्स दैट. ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बहुत अच्छा चीज़ है सी प्लस प्लस. ये इसको अगर आप जान जाओगे तो दुनिया का मैक्सिमम लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगा. बहुत ईजी है, मतलब ईजी नहीं है, सॉरी, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. तो सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग को चाहिए एक कंपाइलर जिसको बोलते हैं टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर. ये रन हो रहा है. सो मैंने एक प्रोग्राम बना के रखा था लेकिन मैं आपको फिर से बना के दिखाऊंगा. so, जाते हैं, एक काम करते हैं, जितने भी सब बंद कर देते हैं एंड क्रिएट a new one. ओके, सो प्रोग्रामिंग का ये जो है इसको बोलते हैं इंटरफेस, जहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग लिखेंगे उसको बोलते हैं कंपाइलर भी बोल सकते हो आप. तो यहाँ पे देखो एक कंपाइल लिखा हुआ है, एक रन लिखा हुआ है. ये यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बाद में पढ़ेंगे ये. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपली. तो उसके लिए पहला स्टेप क्या है, हम लोग को हेडर फाइल
इसको बोलते हैं हेडर फाइल। बाद में पढ़ेंगे हेडर फाइल क्या है, क्यों चाहिए हम लोग को। आज तो सिर्फ यहाँ पे एक एरर निकलेगा, मैं बाद में दिखाता हूँ, श्योर निकलेगा। कौन आया तो टेच दे दिया, वॉइड मेन। ये जो लिखा है मैंने वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, आपका पूरा कोड जो है इसके अंदर ही चलेगा, वॉइड मेन। अभी ये है वॉइड मेन। जब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, एक ओपन ब्रैकेट चाहिए हम लोग को, कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो हम लोग इसके अंदर अभी जो भी लिखेंगे इसके अंदर सब एग्जीक्यूट होगा। ये वॉइड मेन जो है ये क्या करता है, इसका काम है सिग्नल लेना ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये प्रोग्राम रन करो, ये प्रोग्राम रन होना है अभी। तो अभी हम लोग लिखेंगे, पहले लिखते हैं CLR। इसका काम है क्लियर स्क्रीन करना। एक प्रोग्राम चलाया हम लोगों ने, उसके बाद फिर से उस प्रोग्राम को चलाने के लिए अगर क्लियर स्क्रीन को क्लियर करना है तो ये कमांड यूज करते हैं हम लोग। आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं आपको, सिर्फ सिंपली एक अभी हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसका काम है आपको मतलब एक कैलकुलेटर बनाएंगे, 2 नंबर यूज़ करेंगे, 2 नंबर हम लोग इनपुट करेंगे, उसके बाद वो आउटपुट देगा। तो पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट num1 दे दिया, num2 दे दिया और टोटल दे दिया। इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो वेरिएबल क्या है, सो वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल इज ए प्लेस और इज ए नेम इन ए मेमोरी लोकेशन वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स डाटा। अभी सपोज मान लो कि हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग को दाल चाहिए, एक चिकन चाहिए, थोड़ा दाल मछली है, तो हम लोग कहाँ पे रखेंगे, हम लोग एक बाउल में रखेंगे, है कि नहीं। तो उस बाउल में हम लोग अपना खाने का सामान रख रहे हैं। सिमिलरली क्या होता है, कंप्यूटर को जो रैम है, उस रैम में हम लोग डाटा रखना चाहते हैं, तो हम लोग को कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कौन से लोकेशन में डाटा रखना है। तो एवरी लोकेशन में हम लोग एक नाम दे देते हैं। सो नंबर 1 जो है, नाम 1 करके एक वेरिएबल मतलब ले लिया, नंबर 2 ले लिया, टोटल लिया, तो जो भी डाटा हम लोग रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे। सो सपोज मान लो कि सी आउट यहाँ पे दे दिया मैंने, एंटर द फर्स्ट नंबर सीन num1। ये इसका मतलब है सी आउट जो है, इसका मतलब है कंसोल आउटपुट, और सी इन का मतलब है कंसोल इनपुट। कंसोल आउटपुट मतलब अभी जो मैसेज आएगा, जो हम लोग को मैसेज आएगा, वो क्या करता है, ये सी आउट के थ्रू द हेल्प ऑफ सी आउट फंक्शन वी कैन यूज द वी कैन शो द डिस्प्ले मैसेज। एंड इनपुट मतलब जो हम लोग अभी डाटा देंगे, वो डाटा कहाँ पे रखेगा, जैसे मैंने आपको बताया कुछ लोकेशन चाहिए। सो सीन क्या करता है, उस लोकेशन में डाटा रखता है। तो हम लोग कंप्यूटर के बोल रहे हैं कि num1 का जो मेमोरी पे जो लोकेशन बना हुआ है num1 का, उसमें आप ये नंबर डाल दो। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ये जो हम लोग ये जो ले रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर से हम क्या करेंगे, सीन num2, क्योंकि num2 में जाएगा अभी, हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी ये दो num1 और num2 है, num1 में कुछ सपोज कुछ एक नंबर है, num2 में कुछ नंबर है, दोनों को प्लस करके हम दूसरे एक जगह पे स्टोर करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, टोटल पे स्टोर करेंगे, टोटल इक्वल num1 प्लस num2। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे सी आउट अभी योर आंसर इज क्या, योर आंसर इज कहाँ से लेगा वो नंबर, जो हम लोग अभी num1 और num2 जो प्लस करके कहाँ को किसको दे रहे हैं, टोटल में दे रहा है। तो कंप्यूटर कहाँ से लेगा, स्टोर कहाँ पे है, टोटल पे है, तो टोटल से उठा के देगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल।
यहाँ पे लिख दिया गेट सी एच। गेट सी एच क्या करेगा, ये स्क्रीन को पकड़ के रखेगा, फटाक से नहीं जाएगा। उसका दूसरा भी कॉन्सेप्ट है गेट सी एच का, वो बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली सिंपली आप मान लो अभी गेट सी एच जो है वो कंप्यूटर को, मतलब स्क्रीन जो है आउटपुट का, वो पकड़ के रखेगा। हम लोग को जब कुछ की हिट करेंगे तभी वो चला जाएगा। तो अभी फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग को कंपाइल करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया सोर्स कोड से क्या होता है, कंपाइल होता है। तो पहले ये सोर्स कोड है, अब इसको कंपाइल करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करेगा। तो जब यहाँ पे जा सकते हैं, कंपाइल में भी जा सकते हैं, या ऑल्टर F9 भी दबा सकते हैं। कंपाइल में अभी एक एरर आएगा, देखना आप। ये एरर है, क्या दिया है, अननोन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आईक्लूड। ओके, इसका मतलब अभी क्या है, CPP1 मतलब नंबर 1 फाइल में है। इसको क्लिक करके देखो, एक नंबर फाइल में क्या रखा है, IC। एक्चुअली IC नहीं, IN होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। इसका नाम है हेडर फाइल। तो कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइल करने से पहले क्या क्या मिस्टेक्स है, कहाँ कहीं पे ये मतलब ब्रैकेट मिसिंग है क्या, कहीं पे ये फंक्शन का नाम कुछ गलत दे दिया क्या। तो अगर उसको कुछ लगता है कुछ गलत है तो हम लोग को एक एरर शो करेगा। दिस एरर इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। अभी जो हम लोग कंपाइल करने के समय जो एरर निकला है, दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। सो अभी हम लोग फिर से रन करते हैं, सॉरी, तो इसको कंपाइल करते हैं अल्टर F9 करके, तो देखते हैं सक्सेस है। सो विल गॉट, वी गेट नथिंग। तो पहले इसको पहले सेव कर लेते हैं हम लोग, एडिशन करके सेव करते हैं, ADDITION.cpp। ये पहले से बना हुआ था, सो वी आर ओवरराइटिंग द फाइल। एडिशन F9 हो गया, तो कंपाइलिंग सक्सेस हो गया। उसको अभी प्रोग्राम को रन करेंगे। ये रन, कंट्रोल F9 भी दबा सकते हो, मैं कंट्रोल F9 ही दबाता हूँ। तो अभी कंपाइलर का काम हो गया, कंपाइल करना। अभी रन का काम कौन करेगा, इंटरप्रेटर करेगा। तो ये जो रन हो रहा है इसका काम ये इंटरप्रेटर कर रहा है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, क्या बोला था मैंने कि स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन है वो डिस्प्ले करता है। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या था, एंटर द फर्स्ट नंबर। तो पहले मैं एक नंबर अभी पुट करूँगा, सपोज 2, फिर एंटर कर दिया। फिर क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या था, एंटर द सेकेंड नंबर, मैंने 5 ले लिया। फिर एंटर करूँगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या था कि शो करना है आंसर, योर आंसर इज 7। तो क्या किया, 5 और 2 जो था वो दोनों नंबर को प्लस किया। प्लस करने के बाद टोटल जो वेरिएबल था उस पर रखा। उसके बाद उसमें जो रिजल्ट स्टोर है उसी रिजल्ट को हम लोग को शो कर रहा है अभी। सो योर आंसर इज 7। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रनिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो अभी आप लोग को पता चल गया कि कंपाइल टाइम एरर क्या है। नेक्स्ट द रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या है वो हम लोग देखेंगे अभी। देखो यहाँ पे कुछ एरर नहीं आ रहा है कि नहीं। 2 दिया मैंने, 5 दिया, 7 आराम से बढ़िया से 7 निकल रहा है। सो नाउ विल सी व्हाट इज रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर के लिए सिंपली हम लोग फिर से उसको F9 करेंगे। ओके, तो मैंने कर दिया अभी, जैसे मैंने पहले 2 दिया था, अभी मैं देता हूँ 3.9, सॉरी 2.5 ही देते, कुछ भी दे सकते हैं। 2.3 दे दिया मैंने, तो एंटर। देखो क्या हो गया, एंटर द सेकेंड नंबर आया, बट द इंटरप्रेटर इज नॉट गेटिंग लाइक, जो हमें अभी पुट करना है नंबर वो पुट नहीं कर सकते हम लोग, डायरेक्टली दे दिया द योर आंसर इज 2। हम लोगों ने 0.3 भी लगाया था लेकिन इट्स नॉट शोइंग द 0.3। सो दिस इज कॉल्ड इन रन टाइम एरर। अभी रनिंग when we are running the program, when we see some messages, error messages, that's called runtime error messages. So we have to now analyze what is the problem. Okay, so फिर से प्रोग्रामिंग में जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग 2.5 दिए थे, मतलब पॉइंट में आ रहा है चीज। अभी पॉइंट में आने के लिए हम लोग का एरर आ रहा है। तो हम लोग ऐसा करना पड़ेगा प्रोग्राम को कि हम लोग जो, अगर हम लोग पॉइंट में भी कुछ नंबर दे रहे हैं 2.5 6.5, वो भी एक्सेप्ट कर लें। तो हम लोग का मेन कॉज क्या है, कॉज है एरर का, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे इंट लिया है। इंट इंट जो है ये इंट इज ए डाटा टाइप। ओके, सो डाटा टाइप मीन्स इंट मतलब है इंटीजर। इंटीजर क्या है, जहाँ होल जो नंबर्स होते हैं जिसका फ्रैक्शनल पार्ट या पॉइंट नहीं होता है उसको बोलते हैं इंटीजर नंबर्स।
तो हम लोग ने पहले 2 लिया था, 3 लिया था, तो आराम से ले लिया। लेकिन हम लोग जब पॉइंट ले लिया, वो तो इंटीजर नहीं है, क्योंकि उसके पीछे पॉइंट के पीछे एक फ्रैक्शनल पार्ट है, तो उसके लिए ये एरर दे रहा था। So we'll discuss about what is data type, what is integer, float, char in next tutorials. Okay. तो आज सिर्फ हम लोग जानते हैं कि रन टाइम एरर क्या है, उसको कैसे ठीक करना है। तो मैं अभी क्या लूँगा, फ्लोट ले लूँगा। तो फ्लोट क्या है? फ्लोट आर द नंबर्स, फ्लोटिंग एक्चुअली फ्लोट बोलते हैं एक्चुअली। तो फ्लोट इज अ डाटा टाइप, फ्लोट इज अ डाटा टाइप ऑफ द नंबर्स व्हिच हैव फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब पॉइंट जहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं उसको बोलते हैं फ्लोट डाटा टाइप्स। ओके, तो अभी फिर से हम लोग ऑल्टर F9 करेंगे, कंपाइल करेंगे इसको। कुछ एरर रहेगा, देखते हैं। कुछ एरर नहीं है, बढ़िया। नाउ विल रन। सो अभी क्या करेंगे, विल पुट 2.3 अगेन, 100. नाउ इट्स शोइंग द second message, enter the second number. It's not showing any what is called error messages. Okay, फिर से हम लोग देते हैं like 3.2, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? मे बी आंसर होना चाहिए 5.5, राइट? एंटर करते हैं, हाँ 5.5। ओके, तो द प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। तो अगर सपोज हम लोग फिर से रन करते हैं इसको, और सपोज 2 भी देते हैं और 3 भी देते हैं, इसका आंसर 5 निकलेगा। अच्छा, ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा ये एडिट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे बीच में ये सब आ रहा था, गैप नहीं आ रहा था। अभी अगर हम लोग, आप लोग देख सकते हो, ऑल्टर F5, ये कैसे आ रहा था, देखो एंटर नंबर 2 और 3 एक साथ आ रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी रन करेंगे इसको। अभी देखो ये कॉलन आ रहा है, स्पेस आ रहा है, अच्छा लग रहा है प्रोग्राम देख के। 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 आ गया। ओके, इसको सेव कर लेते हैं पहले फिर से। So now I'll show you, I have shown you that what is compiler is, how a compiler works, मतलब कैसे error को check करता है, या what is compile time error and what is runtime error. Now I'll show you what is the object code and what is the exe file. Now if I'll put this, अभी जो हम लोग ने प्रोग्राम बनाया एडिशन करके, दिस इज लाइक ए वन सॉफ्टवेयर। ओके, सो हम लोग ने सॉफ्टवेयर एक बना लिया अभी। सो विल गो टू द प्लेस ऑफ द सॉफ्टवेयर। हम लोग क्या करेंगे, सी ड्राइव में जाएंगे, जो प्रोग्राम डायरेक्टरी है सी प्लस प्लस का डायरेक्टरी, उसमें जाएंगे सी प्लस प्लस, फिर डिस्क में जाएंगे, फिर यहाँ पे चले गए हम लोग टर्बो सी सी प्लस सॉरी, फिर बिन करके जो फोल्डर है, इसमें क्या होता है सीपीपी फाइल और बैकअप फाइल रहता है। तो ये है एक एडिशन सीपीपी फाइल, ये है बैक फाइल है, दोनों फाइल एक ही है बोलने से। यहाँ पे मतलब ये सोर्स कोड रहता है एक्चुअली। तो इसमें अगर मैं क्लिक करूँगा और नोटपैड में खोलूँगा, ओपन दिस इन नोटपैड, then you can see this is the source code. So this with the help of this file you can share your source code to others also. Like if you want to share your code to your friend, then he can take this file and he can analyze, or he can study about this, what is the codes and the programmer have used. Okay, so this is the source code. Now we'll see the object code, the machine language code. So we have to go to the source file. So here you can see this is the addition, sorry, addition, yeah, this one, addition. Our file name was addition, right? So this is the addition, and this file is called obj file. You can see the extension here, .obj. So if we open this file in a notepad, then you can see these codes, and this is a machine language code, and we can't decrypt it, it's encrypted. Okay, only the machine used to learn about this, code. So हम लोग को नहीं चाहिए obj फाइल, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। हम लोग का मेन फाइल क्या है? द मेन फाइल इज दिस वन, .exe, जो लास्ट में, दिस इज द मेन फाइनल फाइल which you can use to distribute your software. This is the software, you can say. So addition is a software. We have developed a calculator where we can put two numbers and the calculator will calculate the
or add the two numbers and he will show us the result. So मैंने कर दिया like 5 एंटर द सेकेंड नंबर आएगा अभी आ गया देन 6 the total should be 11 okay second so we have created a software and calculator okay तो अभी ये जो फाइल है वो आप दोस्तों को दे सकते हो he can use his file to his PC also and remember one thing the exe file only works in not only works in Windows without any error but if you want to run the exe file in Linux then you will need a third party software so you google it your how to run a exe file in Linux this is your task okay मुझे भी बताना कैसे करते हैं इसको so so we got to know what are the types of errors okay the next topic is the advantage and scope of C++ though C++ is the mother of all programming languages okay and like if you know C++ then you can do any kind of programming easily you can learn because in C++ you will get all the basics of the programming what is functions what is variable how to declare a variable okay how to make header files and all the things you will get to know so with the help of this concept you can learn many languages okay and C++ is used in many platforms like embedded programming network programming device driver developing software developing kernel developing like in security like security software like if you want to be a security researcher or if you want to go in security field uh, they also use this C++ software okay so बहुत अच्छा soft programming language है you learn and you can become a good programmer if you learn it thoroughly so thank you for your time spending your time in this presentation and if you want to learn C++ please join me and let me know ओके हम लोग यहाँ से बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे सी प्लस प्लस से हम लोग क्या करेंगे एक सॉफ्टवेयर विल लर्न हाउ टू develop a software we will work in a software like registry will develop a software for Windows where we can block the applications okay so रजिस्ट्री को विंडोज़ का जो रजिस्ट्री है उसको हम एडिट करके एक प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं प्रोग्रामिंग जो सपोज आपका गेम हो गया या कुछ कुछ फाइल्स है लाइक सॉफ्टवेयर है आप लोग रन नहीं करना चाहते तो उसको हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं ओके तो उसके लिए हम लोग को सीखना भी पड़ेगा रजिस्ट्री क्या है सो इफ़ यू like if you learn with me then I can ensure that I can clear all your doubts all your concept और आपका भी कुछ आइडियाज़ होगा तो मुझे मेरे साथ शेयर करना मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे है कि नहीं ओके सो थैंक यू बाय गुड नाइट